ہاں جی بالکل. پروفیسر جوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر آپ لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں ایجوکیشن ونگ پی ٹی آئی کے. تو پی ٹی آئی ونگ جو ہے ایجوکیشن کا، یہ ایجوکیشن کے لیے کیا خدمات پیش کر رہا ہے؟ آپ نے ابھی جو گفتگو کی، میں سب سے پہلے تو ان دونوں حضرات نے جس طرح گفتگو کی بالکل اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا، کیونکہ ہم ایجوکیشن ونگ میں بنیادی طور پر ہم اس ویژن کے تحت چل رہے ہیں جو ہمارے لیڈر عمران خان کا ویژن ہے. دیکھیں، بات جب سیاست میں شعور کی ہوتی ہے تو وہ سیاست کا شعور ضروری ہے کہ وہ ہمارے تعلیمی نظام سے منسلک ہو. اگر تعلیمی نظام شعور پیدا نہیں کرتا تو ہم سیاسی طور پر اپنی سیاسی سرگرمیوں میں شعور پیدا نہیں کر سکتے. اور جو ہمارے عمران خان کا ویژن، میں خود انٹرنیشنلی الحمدللہ پڑھتا رہا ہوں، باہر بھی، اور ایجوکیشن سے بھی وابستہ رہا ہوں اور مختلف پروجیکٹ مینجمنٹ سے بھی وابستہ رہا ہوں. بنیادی طور پر جو تبدیلی لائی عمران خان نے، میں داد دیتا ہوں عمران خان کو کہ انہوں نے جو نصاب، جس نصاب کی بات کی وہ کتاب نہیں ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چند کتابیں جو ہیں وہ نصاب ہے. نصاب نہیں ہے. نصاب کیا متعین کرتا ہے کہ ہم جو کچھ جن لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں، کیا وہ افراد معاشرے کے لیے کارآمد شہری بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. ایک ایسا فرد، اس کو ایک ایسا علم دینا کہ جس کو اپلائی کرتے ہوئے وہ ایک معاشرے کا شہری بن سکے. اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ تعلیم اور جو دی جانی ہے اس کو، وہ تعلیم کیوں دی جائے. عمران خان نے اس کی جو بنیادیں ہمارے لیے سامنے رکھی کہ وہ تعلیم اس لیے دی جائے کہ ہمارے قرآن، ہماری سنت، ہمارا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن اور قائد اعظم کی سوچ کیا ہے، وہ تعلیم اس پر مبنی ہونی چاہیے. اور یہ جو نیا نصاب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بنیادی طور پر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے اس کے جو آبجیکٹو اور گولز ہیں یہ ہیں. پھر اس نصاب میں جو ترتیب دیا گیا کہ ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اسٹینڈرڈ ترتیب دیے کہ یہ معیارات ہیں کہ جن معیارات کے ذریعے ہم ان گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. اور پھر یہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں، آپ جب دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کے بعد انہوں نے کانٹینٹ دیا، اور وہ کانٹینٹ میں دو چیزیں پیش نظر رکھی. پہلی چیز تو یہ پیش نظر رکھی گئی کہ ہم ان کو رٹے سے ہٹا کر، روٹ میمورائزیشن سے ہٹا کر، 90 اور 95 نمبروں کی فیس سے ہٹا کر ان میں سوچنے، سمجھنے اور فہم کی صلاحیتیں پیدا کریں. پہلی بات تو یہ رکھی گئی اس میں. نیچرل چیز لیں گے، ہاں، کہ نہیں، تاکہ وہ ہماری جو نسل ہے وہ سوچنے، سمجھنے، شعور حاصل کرے. اور اس کے لیے کیا چیز ہمارے اس نصاب میں جو نیا قومی نصاب بنایا گیا، اس میں ایک چیز کہلاتی ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بھی مضمون ہمارا طالب علم پڑھے گا اس کا یہ جانچا جائے گا کہ اس نے جو حاصل کیا اس کو وہ استعمال کرنے کے لیے کس حد تک ایبلٹی رکھتا ہے. یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے. اور اس کے اگر یہ تمام چیزیں، چاہے ہمارے دینی مدرسے ہوں، چاہے ہمارے دوسرے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوں، چاہے ہمارے حکومتی تعلیمی ادارے ہوں، اگر ان تمام تعلیمی اداروں میں یہ چیز ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد ہم جو اسیس کریں گے، جو ہم ایویلویٹ کریں گے، وہ ہمارا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایویلویشن یہ آج کل جو 90% نمبر اور 95% نمبر ہے اس کی دوڑ سے باہر نکل جائے، اور ہم یہ جانچیں طالب علموں کو کہ وہ سوال کیسے کر سکتے ہیں. ڈیڑھ سال والا سسٹم ختم کر کے نیچرل. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے اس نصاب میں کہ ہماری پورے نصاب میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ سوال کیا کر سکتے ہیں، کہ سوال کرنے کی طاقت ان میں پیدا کی جائے. اب آپ دیکھیے، ایک طرف سیاست میں عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ تم سوال کرو، تم میں شعور ہونا چاہیے، تمہیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور دوسری طرف اس نے نصاب کا جو ہمیں ویژن دیا وہ بھی یہ دیا کہ نصاب ایک ایسا ہو کہ جس نصاب میں اس کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. اب یہ ایک خوبصورت امتزاج ہے. اگر یہ امتزاج ہو گیا تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم ایک ایسی نسل بنا سکیں گے کہ جو نسل اس معاشرے میں شعور حاصل کرے گی اور جو چیلنج کر سکے گی اس معاشرے کے ہر غلط حد کو کہ جو اس معاشرے کو تباہ حال کرنا چاہ رہا ہے. لیکن ایک بات جو آپ نے کہی، تبدیلی آئی یا نہیں، لیکن ایک بات ایک سمجھ لیجیے، میں پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کریکلم یا نصاب، اس کے نتائج اتنی جلدی ہمارے سامنے نہیں آ سکتے. وہ نصاب ہمارا شروع ہوا، ابھی پہلے پرائمری سطح پر امپلیمنٹ ہوا، اس کے بعد 6 to 8 کا شروع ہوا تھا کہ ہمیں اتار دیا گیا. حالانکہ اس نصاب کو بتدریج آگے بڑھنا تھا. 1 to 5 ابھی سٹارٹ ہوا تھا.
उसके बाद उन बच्चों ने 1 to 5 जिन्होंने पढ़ना था उन्होंने 6 to 8 करना है और 9 10 करना है। अब वो बच्चे एक्चुअली वो नस्ल है जो हमारी तैयार होनी है उस निसाब के जरिए। और फिर इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है जिसकी तरफ हमारे उस्मान साहब ने बताया कि हमारे मिनिस्टर तवज्जो दे रहे थे, लेकिन मजीद तवज्जो देने की तरफ इमरान खान माइल कर रहे हैं उन्हें कि इस निसाब को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस निसाब को पर अमल दरामद के लिए आप इन असातिज़ा कराम को ये बताएं कि इन बच्चों का शऊर बेदार कैसे करना है। ये तो नहीं है कि वो असातिज़ा कराम सिर्फ वही करते रहें कि जनाब ये मौज़ूआत हैं इन्हें रट लो और इम्तहान में हम ये दे देंगे, बल्कि उनकी तरबियत इस अंदाज में होनी चाहिए कि जिस अंदाज में उनको इमेजिनेशन, उनकी सोचने समझने की सलाहियतों में इजाफा हो। और अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, आपने उसे नोट कीजिएगा कि हमने देखा है कि इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए सिर्फ दरसी कुतब अहम नहीं होती, बल्कि उसके लिए हमें जो हमारी तारीखी कहानियों की किताबें हैं, तारीख है, हमारी हिस्ट्री है, तो वो जो स्टोरी बुक्स हैं, उन स्टोरी बुक्स से हमारी नानियां दादियां कभी बताया करती थी, उन स्टोरी बुक्स से बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ाई जाए। और इस पर मैंने खुद भी अमल दरामद किया, एक प्रोजेक्ट किया जिसमें किताबें बनाई गई और उस किताबों के जरिए असातिज़ा कराम को तरबियत दी गई कि तुम किस तरह इमेजिनेशन बच्चों का डेवलप कर सकते हो। तो ये देखिए, एक तरफ हम स्टोरी बुक से डेवलप करें, एक तरफ अपने तदरीसी निसाब जो है उससे डेवलप करें, और एक तरफ हम कौम को शऊर दे रहे हों कि तुमने जाकर क्वेश्चन करना है और तुमने गलत लोगों को पकड़ना है और सही लोगों के साथ करना है। यही वो जंग है सच्चाई और झूठ की, यही वो जंग है हक और नाहक की कि जो इमरान खान माशरे से लेकर निसाब तक और तालीमी इदारों तक लेकर चल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अगर इमरान खान दोबारा आते हैं और दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला, वो जिस बुनियादों पर लेकर चल रहे हैं वो वही बुनियादें हैं कि जो कुरान पाक हमें कहता है कि तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम फिक्र क्यों नहीं करते, तुम गौर क्यों नहीं करते। इमरान खान की पूरी सोच अगर आप देखें, उसकी पूरी बातें उठाकर देखें, तो वो कौम को इस बात पर आमादा कर रहा है तुम गौर करो, तुम फिक्र करो, तुम सवाल करो, तुम तदब्बुर करो। वही चीज़ जो कुरान पाक ने दी है वो उसको अमली तौर पर इस माशरे में देखना चाहता है। तो प्रोफेसर साहब, देखने में कोई भी जो इक़्तिदार में होती है जमात, अपोजिशन वाले उसको डिग्रेड करने के लिए, समझे कि उसकी टांगें खींचने के लिए, उसको गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जिस तरह भी आपने बताया कि 1 to 6, 6 to 8 आपने निसाब शुरू किया, उसके बाद जो है कि मामला जो डिस्टर्ब हो गया आपकी हुकूमत के, तो फिर दूसरी जो हुकूमत आती है उसको तो जीरो कर देती है। इसका कोई मिलजुल के अवाम की फलाह के लिए, अवाम की अच्छाई के लिए आप लोगों को मिल के नहीं इस पर कुछ काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे पार्लियामेंटेरियन यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी तवज्जो में जरूर कराते हैं कि खुदा के लिए सेहत और एजुकेशन ये दो एक कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस पर आने वाली हुकूमतों को ये सोचना चाहिए। बड़ी मुश्किल से एक नई चीज, एक नया ढांचा इस मुल्क में आया है, और खुदारा हम नून लीग के लोगों से भी और पीपल्स पार्टी के लोगों से भी और उन उलमाए कराम से भी जो आज उनके साथ हैं, उनसे ये इल्तिजा करते हैं कि आप इमरान खान की खुलकर मुखालफत करें, उसको गालियां दें, हमें गालियां दें, लेकिन खुदारा इस कौम के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें। वो निसाब जिस पर आप कभी भी नहीं कह सकते वो गलत निसाब है, या वो सेहत की सहूलियात, मैं खुद सेहत की सहूलियात में काम करता रहा हूँ वज़ीर सेहत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी बहनें इंग्लैंड में हैं और अमेरिका में एक बहन है, वो कहती हैं वो सहूलियात वहाँ मैसर नहीं थी। हमारे लोग अस्पतालों में हम जवाब दे देते थे, लेकिन यहाँ किसी एक शख्स को भी जवाब नहीं दिया गया। वैसे साहब ये बात सब एग्री करते हैं, और जो सेहत कार्ड था उस पर हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई जो दूसरी पार्टी के थे, उन्होंने भी इसको एप्रिशिएट किया था। लेकिन जिस तरह भी मियाँ साहब ने कहा कि जिस तरह मामला चेंज होते हैं उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है कि ये पुरानी गवर्नमेंट का था, अगर ये अच्छा काम है इसका क्रेडिट लोग उसको याद करेंगे, तो अवाम नुकसान तो अवाम का ना। अच्छा देखिए, आपको सेहत में आप थोड़ी सी चीज़ देखने की कोशिश करें। सेहत में हमारी मिनिस्टर पर सबसे बड़ा एतराज़ ये था डॉक्टर यासीन राशिद पर कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट नून लीग में शुरू किए थे BHUs को बेहतर करने के लिए, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को, PHUs को बेहतर करने के लिए या DHUs को बेहतर करने के लिए, वो तो वही कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं अगर उन्होंने शुरू किए थे वो दरमियान में रास्ते में न छोड़ा जाए, तो हम उसको आगे लेकर चलें ग्रेजुअली। मेरा ख्याल ये कि हमारे लोगों का जहन यही है कि हमने भी करिकुलम में भी नेशनल करिकुलम का आप उठाकर देखिए, नेशनल करिकुलम को जो पहले मौजूद था उसको सैबोटेज नहीं किया,
ये नहीं चीज है। अगर आप देखें, पहले भी मैं खुद भी निसाब से काम करता रहा हूँ पिछले इतवार में, उस निसाब को सैबोटेज नहीं किया, सिर्फ उस निसाब। अगर प्रोफेसर साहब ये बताइए, आप लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइवेट स्कूल है और सरकारी स्कूल का जो गैप है, इसमें इसको किस तरह, क्या कोई खसूसी काविश या कोई क्या इकदाम ऐसा करेंगे कि ख़त्म नहीं हो सकता? ये माफियाज के आगे इस टाइम जो इंतजामिया वो बेबस नज़र आती है, इसको कम कैसे किया जा सकता? पहली बात तो ये है, इसमें आपने बड़ी अहम बात कही, जो कि हमारे सबसे तालीमी जो दुनिया है उसका एक बहुत बड़ा मसला है। मैं एक बात आपको ये बताऊं कि ये पहले मसला ख्याल नहीं किया जाता था। मैं बेसिकली मैं आई एम ऑल्सो सोशोलॉजिस्ट। मैं ये समझता हूँ कि ये मसला ये महसूस किया जाने लगे, जब वो मसला है तो उसके हल के बहुत से तरीके सामने आए। अब ये बीमारी बढ़ चुकी है, कि बीमारी बढ़ चुकी है और सब लोग महसूस कर रहे हैं कि एक मसला है और इस मसले को हल करने की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा कदम हुकूमत को उठाना पड़ेगा। वो ये कदम है कि वो प्राइवेट तालीम को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ना ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने सरकारी वसाइल नहीं है कि हम उसको तालीम को सारा दे सकें। लेकिन ये हो सकता है और ये बड़ा अच्छा तरीके से हो सकता है कि हम तालीमी अदारों के जो मालिकान हैं और जो बड़े बड़े, स्पेशली मैं छोटे तालीमी इदारों की बात इसलिए नहीं करता कि जब नक्शा निज़ाम तालीम का निफाज शुरू हो गया तो वो खुद ब खुद उस माहौल में रंग जाएंगे कि बड़ा माफियाज, जिनकी आपने बात की माफियाज हैं, उन माफियाज को बैठकर हुकूमत के साथ बैठें और किसी एक ऐसे यानी माहिदे पर पहुंचे कि जिस माहिदे के तहत कोई मॉनिटरिंग सिस्टम उनके लिए हो और उस मॉनिटरिंग सिस्टम पर हुकूमत और बड़े तालीमी प्राइवेट तालीमी इदारे मिलकर उस मॉनिटरिंग सिस्टम को आगे चलाएं। और मेरा ख्याल, अब जिस स्टेज पर हमारे अगर नया निसाब तालीम का निफाज हो जाता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको भी ये मजबूरी होगी कि वो हुकूमती मदद हासिल करें इस मामले में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये बाहमी तौर पर हुकूमत और प्राइवेट अदारों का एक बाहमी मफाद इस वक्त पैदा कर दिया है और उस मफाद को पैदा करने के लिए हम मिल बैठकर कोई एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम तय कर सकते हैं कि जिसके तहत इस तालीम के इस अंदाज को कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आज हम जो हमारे मेहमान थे, प्रोफेसर साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, प्रोफेसर साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, आपके सवालात लेकर हम हुकाम तक पहुँचे, ये हुकाम आपके सवालात को लेके आला हुकाम तक जाके उनको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और जिस तरह के स्कूल माफिया की बात हुई कि जो कह सकते हैं कि इस टाइम हमारी बेसिक ज़रूरत जो है एजुकेशन है, उसमें ये माफियाज ने अपने पंजे गाड़ चुके हैं। जिस तरह खान साहब ने हम दुआ गो हैं, इनकी पूरी जो एजुकेशन की विंग है वो इस पर अपनी रात दिन मेहनत कर रहा है, उस पर वर्किंग कर रहा है कि जिस तरह खान साहब ने अवाम को शऊर पैदा किया है, अपने वोटर सपोर्टर को शऊर पैदा किया है, इसी तरह एजुकेशन में वो जो है अवाम के अंदर शऊर पैदा करे और जो एजुकेशन माफिया है उसको लगाम डाली जाए। तो कोई वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।